Hello friends, myself Akshat Agarwal. I am pursuing my articleship training in GC Shine Company, Ahmedabad based chartered accountant firm. We are working across all over India. Friends, during this COVID-19 lockdown break, I am working from my hometown in Rajasthan. During this break, our firm is coming out with an innovative idea for creating knowledge based video to increasing our soft skills, and this video is only for knowledge purpose. In this video I am going to talk about the different sections for tax audit. 44AB, presumptive sections like 44AD, 44ADA, 44AE, and one section for maintenance of books of account, 44AA. Why I am going to talk these sections in the video? Because it is important for you to understand what are the tax audit limits before doing an audit of a particular client. Starting with section 44AB. In 44AB there are 5 subsections. It is important to know the subsections of 44AB because at the time of filing audit report it is important to quote the subsection of 44AB कि under which subsections of 44AB are you doing audit. Starting with section 44AB subsection A. If assessee का अगर बिजनेस है एंड उसका अगर टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस ही इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट. फ्रेंड्स, टर्नओवर क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट ने टर्नओवर को डिफाइन किया है. टर्नओवर मीन्स ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू recognized in profit and loss account either from sale of goods, supply of goods और rendering of services. क्या फ्रेंड्स, जो कमीशन इनकम होती है वो ऐड होती है टर्नओवर में? यस फ्रेंड्स, इफ इट इज फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. फ्रेंड्स, जो स्क्रैप सेल्स होती है क्या वो टर्नओवर में इंक्लूड होती है? यस फ्रेंड्स, इट इज इंक्लूडेड इन टर्नओवर. फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट एक्सक्लूड होता है टर्नओवर से, बट फ्रेंड्स कैश डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होता टर्नओवर से. Okay, moving further towards 44AB subsection B. If I am a professional and if my turnover is more than 50 lakhs, I am liable for doing tax audit. Professional means technical consultant, interior decorator, accounting professional, legal person, medical person, and engineer. So if इनका अगर टर्नओवर मोर देन 50 lakhs है तो इनको ऑडिट करवाना पड़ेगा. अब फ्रेंड्स, 44AB के 3 सबसेक्शन सी, सबसेक्शन डी, सबसेक्शन ई, ये रिलेट करते हैं प्रिजम्पटिव सेक्शन से. मैं इस सेक्शन के बाद में प्रिजम्पटिव सेक्शन को कवर करूंगा. 44ADA, 44AD एंड 44AE. फ्रेंड्स, प्रिजम्पटिव सेक्शंस के अंदर क्या है? उनके अंदर एक बेसिक टैक्सेबल अमाउंट को डिफाइन किया है कि अगर आप अपनी टैक्सेबल अमाउंट इससे या इससे ज़्यादा शो करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं एप्लीकेबल होगी. अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे तो चलेगा. पर यस, अगर आप उतनी टैक्सेबल इनकम शो नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 44AB के सबसेक्शन सी के अंदर, सबसेक्शन डी के अंदर और सबसेक्शन ई के अंदर आकर ऑडिट करवाना पड़ेगा. 44AB सबसेक्शन सी डील्स विथ 44AE प्रिजम्पटिव सेक्शन फॉर ट्रांसपोर्टर्स. 44AB subsection D deals with 44ADA presumptive sections for professionals, and 44AB subsection C deals with presumptive sections for 44AD for individual, HUF, partnership firm other than LLP. Now friends, I am discussing those presumptive sections starting with section 44ADA. It is for professional. Profession includes legal person, medical, engineer, interior decorator, technical consultant, accounting professional. और इनकम टैक्स ने ऐसा भी डिफाइन किया है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्किल है, स्पेसिफिक नॉलेज है, यस यू आर एन प्रोफेशनल. फ्रेंड्स, 44ADA के अंदर क्या बोला है? इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 50 lakhs, देन आपको अपनी टैक्सेबल इनकम को मोर देन 50% ऑफ दैट टर्नओवर अगर आपने शो किया है तो आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे तो चलेगा. बट यस फ्रेंड्स, अगर आप उतना इनकम अपना शो नहीं करते तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, भले ही आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है. से फॉर एग्जांपल, आई एम अ टेक्निकल कंसल्टेंट and if my turnover is 40 lakhs, less than 50 lakhs,
तो मुझे उसका 50% या उससे ज़्यादा मेरी इनकम शो करनी पड़ेगी। 40 लाख का 50% 20 लाख या उससे ज़्यादा मुझे मेरी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन शो करनी पड़ेगी अगर मुझे टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। तो अगर मैंने 20 लाख से कम मेरी टैक्सेबल इनकम शो करी, यस आई एम लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। ओके, 44 AD। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 44 AD विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजम्पटिव सेक्शन फॉर इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। फ्रेंड्स, अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है, आई एम इंडिविजुअल, तो मैं 44 AB के सबसेक्शन A में कवर होता हूँ। बट फ्रेंड्स, 44 AD जो सेक्शन है, प्रिजम्पटिव सेक्शन, वो क्या बोलता है कि अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और अगर मैं मेरी टैक्सेबल इनकम को मोर देन 8% और 6% शो करता हूँ, 8% फॉर दोज असेसीज हु आर डीलिंग विथ कैश बिजनेस, मीन्स अगर कोई भी कुछ भी कैश ट्रांजेक्शन होता है ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, तो यस उनके लिए लिमिट है 8%। पर जो असेसी जो ऑनलाइन मोड में डील करते हैं उनके लिए लिमिट है 6%, कि अगर वो अपना टैक्सेबल इनकम मोर देन 8% और 6% शो करते हैं तो वो टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे तो चलेगा। फ्रेंड्स, 44 AD क्या हर कोई फॉलो कर सकता है? नो, जो प्रोफेशनल पर्सन है वो 44 AD फॉलो नहीं कर सकते। सेकेंड, जिनकी कमीशन इनकम होती है वो 44 AD को फॉलो नहीं कर सकते। एंड थर्ड, जिनका एजेंसी का बिजनेस होता है वो 44 AD को फॉलो नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, देयर इज ए न्यू कंसेप्ट, कंटिन्यूटी कंसेप्ट इन 44 AD। कंटिन्यूटी कंसेप्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स, कि मैंने जिस साल प्रिजम्पटिव ऑप्ट किया 44 AD, उसके मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कंटिन्यू 44 AD को ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं किसी साल 44 AD को ऑप्ट नहीं करता हूँ तो मैंने जिस साल 44 AD को ऑप्ट नहीं किया उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मैं 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो मुझे बहुत केयरफुली होकर 44 AD को अप्लाई करना पड़ता है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स 44 AE, दैट इज फॉर ट्रांसपोर्टर। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टर के लिए इन लेमन लैंग्वेज आई एम सेइंग हु आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स, जिनका ट्रक का बिजनेस होता है, मीन्स जो ट्रक से गुड्स का मूवमेंट करते हैं, तो उन ट्रक ओनर्स के लिए एक सेक्शन है प्रिजम्पटिव सेक्शन 44 AE। तो पहले तो किसको अप्लाई होगा, जिनके पास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो अगर 10 ट्रक्स या उससे कम के ओनर है तो ही उनके लिए 44 AE अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, इधर व्हीकल को डिफाइन किया है, हैवी गुड्स व्हीकल, नॉन हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स जिन व्हीकल का वेट मोर देन 10,000 किलोग्राम है उनको हैवी गुड्स व्हीकल का है, एंड जिनका वेट लेस देन 10,000 किलोग्राम है उनको का है नॉन हैवी गुड्स व्हीकल। फ्रेंड्स, हैवी गुड्स व्हीकल के लिए कितनी आपको टैक्सेबल इनकम शो करनी पड़ेगी? तो फ्रेंड्स, ₹1000 पर टन ऑफ योर टोटल व्हीकल वेट पर मंथ और एक्चुअल अर्निंग फ्रॉम दैट ट्रक विच एवर इज हायर। एंड नॉन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए मोर देन 7,500 पर मंथ और एक्चुअल अर्निंग फ्रॉम दैट ट्रक विच एवर इज हायर आपको टैक्सेबल इनकम शो करनी पड़ेगी। अगर आपने इतनी टैक्सेबल इनकम शो करी, यस आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे तो चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने 44 AB का टैक्स ऑडिट कवर किया, प्रिजम्पटिव सेक्शंस कवर किए तीनों, 44 ADA, 44 AD एंड 44 AE। नाउ आई एम डिस्कसिंग द सेक्शन 44 AA, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर कि क्या अगर मैं टैक्स ऑडिट में कवर नहीं होता हूँ तो क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे? तो फ्रेंड्स, वो 44 AA के अंदर लिखा हुआ है। 44 AA के अंदर एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की लिस्ट दी है जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी मेंटेन करना पड़ेगा। कौन प्रोफेशनल? तो फ्रेंड्स, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियर, लीगल पर्सन, आर्किटेक्चरल से अकाउंटिंग प्रोफेशनल, उनको फ्रेंड्स कंपल्सरीली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। भले ही अब वो टैक्स रेट में फॉलो होते हैं नहीं होते, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इन 44 AA कि अगर मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मोर देन 1,20,000 है और मेरा टर्नओवर मोर देन 10 लाख है, मैंने जो लिमिट बोली वो अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल HUF के लिए 1,20,000 की जगह 2,50,000 एंड 10 लाख की जगह 25 lakhs। इफ आई एम इंडिविजुअल
and if my income from business profession is more than 2,50,000 or say my turnover is more than 25 lakhs, then yes, books of account is mandatory for me. मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा. पर फ्रेंड्स ये लिमिट जो मैंने बोली 2,50,000 और 25 lakhs, ये फ्रेंड्स लिमिट कौन से ईयर की देखने की होती है. तो फ्रेंड्स मैं इस साल का ऑडिट कर रहा हूँ, तो इसके पिछले 3 साल के अंदर कभी भी ये लिमिट अप्लाई हो गई, मीन्स फुलफिल हो गई, तो मुझे इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा. बट फ्रेंड्स मेरा ये अगर न्यूली सेट ऑफ बिजनेस है तो पिछले साल तो होंगे नहीं, तो क्या करने का उसके अंदर. तो उसके अंदर फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि अगर एसएससी को लगता है कि उसका टर्नओवर मोर देन 25 लाख होगा या उसकी जो इनकम है बिजनेस प्रोफेशन की वो मोर देन 2,50,000 होगी, तो यस उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा. फ्रेंड्स बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक रूल डिफाइन है, रूल 6F. रूल 6F के अंदर क्या लिखा है, आपको क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा. फर्स्टली कैश बुक इफ़ यू आर फॉलोइंग कैश सिस्टम, जर्नल इफ़ यू आर फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम. फ्रेंड्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आपका 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा. फ्रेंड्स रूल 6F के अंदर ईयर्स मेंटेन किए, डिस्क्राइब किए कि आपको कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है. तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 18-19 की मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो जो उसका असेसमेंट ईयर खत्म होगा, कब खत्म होगा, तो 31 मार्च 20. और अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो उसका असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021. उसके 6 साल तक मुझे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा. फ्रेंड्स मैं इसको रिलेट करता हूँ 44AD एंड 44ADA से. फ्रेंड्स अगर मैं 44AD के अंदर फॉलो होता हूँ, मैं मेरी टैक्सेबल इनकम को मोर देन 50% शो करता हूँ, तो क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है. यस फ्रेंड, इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज प्रोफेशनल्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी कवर्ड इन 44AA सबसेक्शन 1. उनको मैंडेटरी है. अगर वो 50% से कम भी इनकम शो करते हैं तो भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा. ज़्यादा भी शो करते हैं तो भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा. आई एम कोरिलेटिंग द 44AA सेक्शन विद 44AD. मैंने 44AD जब डिस्कस किया था तो उसके अंदर जो 8% और 6% की लिमिट बोली थी, अगर मैं फ्रेंड्स उतना इनकम शो कर देता हूँ तो क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे. नो फ्रेंड्स, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने. 44AD के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने अगर आपने 8% और 6% टर्नओवर आपका टैक्सेबल इनकम दिखा दिया. बट यस फ्रेंड्स, अगर आप वो ऑप्ट नहीं करते हो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स और अगर आपका टैक्सेबल इनकम मोर देन योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन यस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपल्सरीली मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, सो 44AA ऐसा बोलता है. मैंने सारे सेक्शन कवर किए. 44AB ऑल 3 प्रिजम्पटिव सेक्शंस, 1 इंपॉर्टेंट सेक्शन 44AA. फ्रेंड्स जो मैंने ये बात करी वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिलेटेड थी. मैं इसमें 2021 के जो चेंजेस किए फिनांस मिनिस्टर ने इन द बजट 2020, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस था टैक्स ऑडिट का, जो 1 करोड़ की लिमिट को 5 करोड़ किया है, मैं उसको मेरे नेक्स्ट वीडियो में इंटरप्रेट करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल होगा. अभी जो ऑडिट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए होगा. फ्रेंड्स this video is only for educational purpose. This video may have some mistakes or errors, so before considering it is an expert advice, you may either call us or consult your respective chartered accountant. Thank you for your concern listening. Thank you very much.